starting with the chapter 8, that is the composition and the structure of the atmosphere. Uh, let's start line by line. We'll be discussing all the important points so far. So the first thing that we have is, this is the introductory paragraph. One important line that we have to see is, atmosphere is a mixture of different gases and it envelops the earth all around. Now, generally, in a layman's language, or basically as a student of like a student of third to fourth class, what you used to say that the earth is surrounded by the atmosphere. It is not wrong, it is absolutely right, but the word that you need to use is what which plays the role. So it envelopes the earth all around. So it envelopes the earth. It's surrounded by the, like earth is surrounded by the atmosphere. Yeah, it's right. How you present it as like envelopes the earth is better way to address this. Then one important one marker question that is to be formed is, जो हमारा air है, that is an integral part of the earth mass, and 99% of the total mass of the atmosphere is there present at the height of, to the height of 32 kilometer from the surface. Means 99% of the total mass of the atmosphere that is there present at the to the height of 32 kilometers, right? This is important. Now one marker question. Then further, if we go ahead, we come to the topic of the composition of the atmosphere. This we know that atmosphere is composed of gases, water vapors, and water vapor and dust particles. So the proportion of the gases changes in the higher layer of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 kilometers. Again, one marker question. So they can give you a like केस स्टडी में उसमें एक स्मॉल क्वेश्चन पुट अप कर देंगे कि इतनी इतनी हाइट है एंड टेल अस कि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी या नहीं. तो 120 किलोमीटर्स में बेसिकली जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाती है. ओके. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स. तो कितने हाइट पे हमको CO2 वाटर वेपर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज 90 किलोमीटर्स. कमिंग टू ऑक्सीजन इट इज 120 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस, राइट. नाउ गैसेस. सो CO2 is meteorologically a very important gas. Now the term that we have, that is meteorologically. Now what does it mean? Oh, okay. Now what does it mean? देखो, अगर हम इसको ब्रेक अप करते हैं लॉजिकली, इज मीटियोर इज समथिंग दैट वी कम टू द स्टडी ऑफ. मीटरोलॉजी क्या होती है? चलो मीटरोलॉजिकल भी नहीं आते. मीटरोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द वेदर और द एटमोस्फेरिक फिनोमिना, राइट. एंड सो मीटरोलॉजिकली बेसिकली हम बात करते हैं the point that is the study of atmosphere and all. तो CO2 की अगर हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, जब हम एटमॉस्फेयर की स्टडी की बात करते हैं, तो उस बेसिस से जो CO2 है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है. क्यों? क्योंकि इट इज अ because it is transparent to the incoming solar radiations but opaque to the outgoing terrestrial radiations. CO2, अब तक हम CO2 का रोल जो पढ़ते आ रहे थे, that was merely it is there taken by plants to conduct the process of photosynthesis. But this is what in geographical terms CO2 is relevant. It is transparent to the incoming solar radiations. Now अब एक टर्म होती है जिस जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज सॉरी फॉर द राइटिंग, समझ ही नहीं क्या, insolation. So this is the term which we used for the incoming solar radiation, that is insolation. जो हमारी सोलर रेडिएशन की अमाउंट जो रिसीव हो रही है
एक प्रॉपर सरफेस एरिया पे, उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। इसको मेजर करते हैं हम वॉट्स। अब ये भी देख लो इसको कैसे मेजर करते हो, इसको मेजर करते हो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। फिर उसके बाद विल बी सीइंग, बट हाँ वो वाला पॉइंट नहीं यहाँ पे। बट नाउ वेन एवर यू आर राइटिंग दिस क्वेश्चन यू नीड टू मेक योर आंसर शॉर्ट. So how you'll write it, that CO2, it is basically one of the important gas because it is transparent to the incoming solar radiations, but it is opaque to the outgoing terrestrial radiations. अब this is clear कि जो rays आ रही है उसके लिए transparent है, transparent in the sense that जो rays आ रही है वो easily enter कर सकती हैं, बट जो यहाँ से जो लैंड पे से रेडिएशंस निकल रही है वो बाहर नहीं जाने देती है उसको. दैट इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि ओके वी आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि भाई जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं ये उसको आने दे रही है, पर जो यहाँ से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं ये उसको वापस नहीं जाने दे रही, क्योंकि उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे. तो क्या होंगे बेसिकली, अब देखो हीट आ रही है, बट जब हीट जाने की बात है, अगर लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लाइक कि अगर कोई चीज़ एंटर कर रही है, कहाँ गया अगर कोई चीज़ एंटर कर रही है, ओके, बट वो एग्जिट नहीं कर पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गई. और उसको किसने ट्रैप किया, CO2 ने. क्यों, क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये उसको जाने नहीं देगी वापस, तो वो उसको ट्रैप कर लेती है. अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये इसको ट्रैप कर लेती है तो इट बेसिकली ट्रैप्स द हीट, क्योंकि दिस इज व्हाट हीट इज. जो सोलर एनर्जी अर्थ पे आई जो अर्थ ने एब्जॉर्व किया जिस सोलर एनर्जी को, उसको जब बाहर निकालने की बारी आई हमारे एटमॉस्फेयर से तो इसने ट्रैप कर लिया उसको. तो उसकी वजह से क्या हुआ, हीट ट्रैप हुआ, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर बाय एब्जॉर्बिंग दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस या फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई देयर इज द occurrence of this greenhouse effect which keeps the earth warm, right, and which further cause your global warming. So it absorbs a part of terrestrial radiation and reflect back some part of it towards the earth surface. Now this is also ये तो हमने डिस्कस किया था कि उसको ट्रैप कर लेगी, और क्या करती है, रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट ऑफ इट. इट एज इफ दिस इज योर CO2, ये बाहर जाना चाहती है, इसने इसको यहाँ पे दबोच लिया या फिर इसको वापस भेज दिया, लाइक दैट. ओके, नाउ it is largely responsible for the greenhouse effect. That is important. We know कि CO2 is responsible for the greenhouse effect, but why? How, what all phenomena works out? That is what they explain. Now the volume of other gases is constant, but the volume of CO2 has been rising in past few decades mainly because of the burning of fossil fuels. Now CO2 ये कर रहा है, हमें CO2 को ख़त्म करना है, तो CO2 किस चीज़ की वजह से हो रहा है, अब हम ऐसे चेन बिल्ड कर रहे हैं कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, CO2 की वजह से. CO2 किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इसके एटमोसफेयर में. दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर. नाउ दिस CO2 का मैटर इज डन. Now the next is ozone. It is another important component of the atmosphere which is found between 10 to 15 kilometers above the Earth's surface. So when we'll be doing the different spheres of the atmosphere, there will see in stratosphere ozone is present above the Earth's surface and act as a filter and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun and prevents them from reaching the surface of the earth. This we already know. This we studied from ages like ओजोन. अच्छा, ओजोन का सिंबल क्या होता है, O3, ठीक है, एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, और उस
देन वी स्टार्टेड कि ओजोन लेयर में होल्स बिल्डअप हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एसीज एंड द रेफ्रिजरेटर्स, वहाँ से जो गैसेस निकल रहे हैं उसकी वजह से. ठीक है. So ozone is another important component of the atmosphere which is found 10 to 50 kilometers. Where it is there to absorb the UV rays which comes from the sun, and it prevents these radiations from reaching out the earth's surface. Then the next component that we have is water vapor. Now it is also a variable gas in the atmosphere which decreases with altitude. Very important. Decreases with altitude. What is altitude? Altitude is height. मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर वेपर कम होती जाएगी. यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग यू जेन्युइन एग्जाम्पल, लाइक रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स. यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक. फिर यहाँ पे 2 हो गए. ठीक. फिर यहाँ पे 1 हो गया. ठीक. ओके. सो दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट. सो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी. In warm and wet tropics, it may account for 4%. Important to be noted. 1 mark a question can be formed from there. It may account for 4% of the air by volume, while in the dry, cold areas of desert and polar regions, it may be less than 1% of the air. Right? So, यहाँ से 2 ideas हमें clear हो गए. अच्छा, further we'll read, then we'll do the sum up of it. Water vapors also decreases from equator towards pole. Decreases मतलब equator पे ज़्यादा पाए जाएंगे as compared to the poles. It also absorb part of insolation. Now what is insolation? We are not familiar with this term insolation. We discussed it. What is insolation? यहाँ पे हमने discuss किया था. It is basically, it simply refers to the incoming solar radiations from the sun and preserves the earth's radiated heat. Right? Yes. So what I was saying, it does act like a blanket, allowing the earth neither to become too cold nor too hot. Okay. So let's sum up this water vapor वाला point. सबसे पहला, it decreases with altitude. Second, जहाँ पे wet होगा, warm ट्रॉपिक होंगे, वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू द ड्राई एंड द कोल्ड एरियाज लाइक दैट ऑफ द डेजर्ट्स एंड द पोलर रीजन्स. एंड इक्वेटर पे ज़्यादा अमाउंट में है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पोल्स. और वाटर वेपर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसुलेशन. दैट इज वाई इट कीप्स द अर्थ कूल बिकॉज वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट इसके अंदर रहता है. ठीक है. It does act like a blanket. अब obviously अब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं. वाटर वेपर इज इटसेल्फ लाइक अ सर्कल शेप. ठीक है. फिर वहाँ पे ट्रैपिंग हो जाती है, वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, तो ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा सर्द होती है. They also contributes to the stability and instability in the air. Now this is a like very absurd point. अच्छा ये कैसे होता है? Let's see that as well. Okay, there is no information provided. Okay, we'll be discussing on that. तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी. तो ये डुअल रोल क्यों होता है? राइट. सो बेसिकली हमने ये देखा कि दे आर देयर टू अब्जॉर्ब द हीट. एंड सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू सी दैट इज कॉन्सिक्वेंस भी दो. कैसे? ये तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है वो ट्रैप करिए हीट को. ये वाला पॉइंट अगर तुम डिस्कस करो, तुमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कंडेंसेशन के बारे में, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में. उसमें क्या था कि जो आपकी मॉइस्ट एयर है, राइजिंग मॉइस्ट एयर है, दैट कूल्स एंड कंडेंसेस एंड दैट देन इट फॉर्म्स क्लाउड. तो जो रिलीज होगा लेटेंट हीट का इस कंडेंसेशन के टाइम पे, इट विल further develop up to the upward motion. Basically simply अगर बोले तो जो moist air होती है that is lighter than your dry air at the same temperature and pressure.
so it tends to rise. So that is why it creates the instability, because of that cloud formation और storm की development होती है, that is because of water vapor only. तो इसको यहाँ पे you can mark up a point कि stability कैसे लेकर आ रही है, instability कैसे ला रही है. Stability we already discussed कि भाई they are absorbing the radiations, ये एक major point है जो mentioned है, ठीक है. और मॉडरेट करती है बेसिकली टेम्परेचर को, दिस इज ऑल्सो विच वी डिस्कस्ड. यार कहाँ पे अभी पढ़ा था, हाँ ये वाला पॉइंट कि ब्लैंकेट की तरह काम करती है, ना ज़्यादा ठंडा होने देती है ना ज़्यादा गर्म, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है. इंस्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करी है, क्लाउड की फॉर्मेशन से प्रोवाइड करी है. स्ट्रॉम्स, ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो बेसिकली एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है बहुत सारे वेदर सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो जाता है. पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, तो इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है, दैट इज आल्सो टू बी मेंशन्ड. Okay, now dust particles. Now the third point that we have is dust particles. So atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles. Okay, which may originate from different sources and include sea salt, fine soil. Okay, so these all are the dust particles which we could see. Sea salt, fine soil, smoke soot, ash, pollen, dust, and disintegrated particles of the meteors. Okay, so they are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere. Where are they concentrated? Lower layers of the atmosphere. Yet conventional air currents may transport them to the greater heights. करंट्स को चुल है भाई कि आप नीचे क्या कर रहे हैं, हम आपको ऊपर उठाएंगे. सो दे टेंड टू ट्रांसपोर्ट देम. हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे पाई जाती है, कि जैसे हमने देखा वाटर वेपर्स कहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे या पोल्स पे. इक्वेटर पे वेट ओके, तो वैसे ही हम इसका देखेंगे, दैट इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल and temperate region due to dry winds in comparison to the equatorial and polar regions. तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में. लेट मी शो यू द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन. सी, सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट, दिस एंड दिस वन. तो क्या डस्ट पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर? Like this is not genuine question which could be formed. I'm just telling you like this only. ठीक, okay. Now where were we? The higher concentration of dust particles found in subtropical and temperate region due to the dry winds. किसकी वजह से? Dry winds की वजह से. Okay, then we have dust and salt particles act as a hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds. This is a point which we need to discuss. Okay, okay. So, what they say that dust and salt particles act as a hygroscopic nuclei. We know nuclei, हमने पढ़ रखा है अपने 10th में भैया साइंस के अंदर. हाइग्रोस्कोपिक वाला पॉइंट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या बोलता है? देखो, अगर हम बोलते हैं अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया कि भाई डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. नॉट ओनली डस्ट, देयर आर अदर थिंग्स दैट वी कुड से, दैट इज सॉल्ट, स्मोक, ये भी है, ठीक है. तो ये पार्टिकल जो ये हाइग्रोस्कोपिक है, क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं या फिर होल्ड अप करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को. अब जो वाटर वेपर है हमारा, उसको कोई सरफेस चाहिए कंडेंस करने के लिए, और ये जो पार्टिकल्स हैं दे एक्ट एज दिस फॉर द कंडेंसेशन पर्पस, और वहीं से हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. एंड दैट इज वाई दीज आर रेलिवेंट विद वाटर वेपर. अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या खुद से ही वाटर वेपर कंडेंस नहीं कर सकते हैं बिना डस्ट के, सॉल्ट के पार्टिकल्स के? कंडेंसेशन विल बी इनएफिशिएंट बिकॉज प्योर वाटर वेपर जो है उन्हें बहुत मुश्किल होती है कंडेंस करने में क्लीन एयर के अंदर बेसिकली.
ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे वी यूज टू से दैट, एक जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई वी नीड द डस्ट पार्टिकल्स, इनको तो मतलब प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए हमारे एटमोसफेयर में, काम क्या आ रहे हैं ये? This is one of the important factor, this is one of the important key role that they play. They act as a hygroscopic nuclei, जहाँ पे मतलब ये एक बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक सरफेस फॉर द वाटर वेपर टू कंडेंस, बेसिकली दिस इज व्हाट दे डज, right? Very important. Then if we move ahead to the structure of the atmosphere, so we are done with the composition of the atmosphere. Let me give a recap for the same. Just a second. Okay, you joined it now. Okay. Okay. So the first thing that we learned about, that is जो हमारा 99% ऑफ टोटल मास एटमॉस्फेयर का वो 32 किलोमीटर्स की रेंज में ही प्रेजेंट है। उसके बाद वी सॉ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, बेसिकली जो हमारा CO2 वाटर है वो 90 किलोमीटर्स की रेंज में पाया जाता है, वेयर एज द ऑक्सीजन 120। Right, then we study about CO2, how it is important because it acts as a transparent gas to the incoming solar radiations, but it acts as an opaque one to the outgoing terrestrial radiations. Or what other word we could use for the outgoing rays? I used it, infrared. Okay, infrared radiations. Fine, then it reflects back, कुछ ही absorb कर लेता है, कुछ ही reflect back कर लेता है, and this is only the reason because of which greenhouse effect occurs. Then इसका CO2 ज़्यादा, okay, that there. Then ozone के बारे में हमने पढ़ा 10 to 50 किलोमीटर की रेंज में प्रेजेंट है. It acts as a filter and it absorbs the UV rays. ठीक है. Then we head to the water vapors. फिर हमने इसका देखा कि कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है ये. It decreases the altitude. Then it is present in more among like इक्वेटर से ज़्यादा, सॉरी पोल से ज़्यादा इक्वेटर पे पाया जाता है, and these are also the one which absorbs the insolation, the radiations coming out from the sun. So it act both as a stabilizer as well as the instabilizer for the air. Then we discuss about the dust particles, what all are they present एंड कहाँ कहाँ पे कंसनट्रेशन इनकी ज़्यादा है. ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, वेराज जो इक्वेटोरियल और पोलर रीजन है यहाँ पे ये कम पाए जाते हैं. ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ आवर टुडेज क्लास, दैट these act as a hygroscopic nuclei which around which water vapors condenses to produce clouds. Then we have the structure of the atmosphere. It consists of different layers with varied density and temperature. अब density का जो point है, that is highest near the surface of the earth and decreases with the increasing altitude. Okay. The column of atmosphere is divided into 5 different layers, and these are the layers. That is यहीं पे देख लेते हैं. That is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. अब ये जो पॉज है दैट इज नथिंग न्यू. दिस इज बेसिकली ये लिमिट सेटअप कर दिया कि अच्छा यहाँ तक ये इतना चीज़ प्रेजेंट है. जैसे कि अगर हम बात करें ट्रोपोपॉज की, तो ये बेसिकली आपका सेपरेट कर रहा है स्ट्रेटोस्फेयर को और ट्रोपोस्फेयर को कि भैया ये यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब इससे ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, इससे नीचे जो पॉइंट था वो हमारा ट्रोपोस्फेयर था. तो जो बीच का पॉइंट इनको डिफरेंशिएट कर रहा है, दैट इज व्हाट इज ट्रोपोपॉज. सेम गोज विद द स्ट्रेटोपॉज एंड मेसोपॉज. सो वी हैव 5 layers, दैट इज troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. ओके राइट, कहाँ पे थे हम? ये हो गया. ठीक है. सो सबसे नीचे हमारा कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर. एज वी कुड सी इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर. अब ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इक्वेटर और पोल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. एवरेज बोला है ना इन्होंने, दे आर नॉट सेइंग कि
दिस इज 13 किलोमीटर द हाइट, नो दिस इज द एवरेज हाइट. सो अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर्स के अराउंड ये पोल्स पे पाया जाता है, whereas 18 किलोमीटर्स अराउंड इट इज फाउंड ऑन दी एट द इक्वेटर. तो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि ये बाई इट इज थिकनेस ऑफ दिस इज ग्रेटर एट इक्वेटर. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज हीट इज transported to great heights by strong conventional currents. This is what you have to learn. This you already know. ये वाला मैटर में already know. क्यों है? That is the one which you need to learn. Okay? अब यहाँ पे हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, पानी भी पाए जाते हैं इस लेयर के अंदर. ओके, नथिंग न्यू, नथिंग extraordinary. All changes in climate and weather takes place in this layer. This is important. सारे changes जो हमारे climate में है और weather में है वो इस layer में लिए जाते हैं. This is what makes it important. तो दो पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंटली हमको याद रखने हैं. हाँ, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, ओके फाइन. देन अब ये पाए जाते हैं तो यहीं से तुम रिलेट कर लो ना इसको कि जो भी चेंजेस होंगे हमारे क्लाइमेट में, वेदर में, वो इसी लेयर में होंगे. और जो टेम्परेचर है इस लेयर का, इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. तो देखो, स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इनिशियली, बिल्कुल मास ऑफ द एटमोसफेयर के बारे में कि 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमोसफेयर इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर्स. तो ये बहुत ही जेन्युइन और ऑब्वियस पॉइंट बन जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में हमारे इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, या फिर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फंक्शंस हो रहे हैं, क्रूशियल हैं. जैसे कि सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यहाँ हो रही है, क्लाइमेट में, वेदर में चेंजेस इस लेयर के अंदर हो रहे हैं. ठीक है, एंड द टेम्परेचर दैट इज डिफरेंट. ओके, तो दैट इज द रीजन. अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर प्लस स्ट्रेटोस्फेयर ये दोनों का ये मिक्स हो जाता है यहाँ पे. क्योंकि अगर 99% ऑफ समथिंग दैट ऑफ द मास ऑफ द एटमोसफेयर यहाँ लाई करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रूशियल एस्पेक्ट्स होंगे, बहुत सारे फीचर्स होंगे, नॉट फीचर्स, इवेंचुअली बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट होंगी, राइट. अब जो इसको सेपरेट करते हैं दैट इज ट्रोपोस्फेयर. Air temperature of tropopause is about 80 degrees Celsius over the equator and about minus 45 poles पे. The temperature here is nearly constant and hence it is called the tropopause. ये one reason हमने डिस्कस किया था कि भाई ये इसको सेपरेट करता है, ठीक है, और इसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं. सेकेंड रीजन वाई इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज ये इन्होंने हमको दे दिया, दैट इज यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं. पॉज बिकॉज द टेम्परेचर हियर इज कांस्टेंट. स्ट्रेटोस्फेयर इसके ऊपर पाया जाता है और ये 50 किलोमीटर्स तक की हाइट तक होता है. अब ये चीज़ याद रखना कि आपका ये अराउंड एवरेज 13 जाता है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा एवरेज हाइट. अब 13 और यहाँ 50. सो डोंट थिंक कि आपका ये 1 किलोमीटर से मेजर हो रहा है, नहीं, ये इसके बीच का जो गैप आएगा ना, दैट इज द रेंज ऑफ योर स्ट्रेटोस्फेयर. बहुत बेसिक है ये, वेरी बेसिक मैथ है यहाँ पे, बट आई देयर टू मेक यू दिस थिंग क्लियर. ओके, तो इसकी रेंज इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ना कि यहाँ और यहाँ, लाइक वन से, ओ सॉरी इतना नीचे चला, लाइक वन से लाई नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज हमारा वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फियर, राइट. सो वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट दिस ऑलरेडी डिस्कस. यहाँ पे ओजोन लेयर है, क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर कौन सी रेंज में थी हमारी, 10 to 15 किलोमीटर्स, राइट. एंड ये 50 तक लाई करता है, तो 10 to 15 ही इस वाली लेयर में लाई करती है. और इसका काम क्या है, दैट इज गिवन. नाउ मीसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स. अब ये यहाँ से 80 है, ठीक, तो इसका इसका यहाँ से मेजर करना इज बेवकूफ, लाइक टोटल मैडनेस.
इट इज ओनली 30 किलोमीटर्स वाला रेंज है इसका, 80 नहीं है। हाइट 80 है, बट इसका जो एरिया टाइप अगर हम बोले तो दैट इज 30 kilometers in between range. Now in this layer once again temperature starts decreasing with the increase in altitude and reaches up to -100 degrees Celsius. कहाँ पे? हमारे mesosphere में at the height of 80 kilometer. जो अपर लिमिट है इसकी इज दैट इज मीजोपॉज। फिर उसके बाद हमारा जाता है आइनोस्फेयर जो 80 से 400 तक है, ठीक है, दैट इज अबव मीजोस्फेयर। कहाँ है हमारा आइनोस्फेयर? अब यू विल आस्क मी दैट अभी आपने वी डिस्कस अबाउट मीजोस्फेयर, बट यहाँ पे भी है थर्मोस्फेयर एंड उसके बाद भी है एक्सोस्फेयर। सो व्हाई वी आर कॉलिंग दिस आइनोस्फेयर, राइट? सो दिस इज नथिंग, आइनोस्फेयर कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जनरली हम इनको 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो आइनोस्फेयर बेसिकली आपका, अब देखो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। इट इज लोकेटेड बिटवीन 80 to 400 एंड वेयर थर्मोस्फेयर इज लाइक। तो इनका थोड़ा कलेक्टिव जो पॉइंट हो जाता है दैट इज कॉल्ड आइनोस्फेयर, ठीक है, above the mesopause. Now it contains electrically charged particles known as ions and hence it is known as ionosphere. Ionosphere क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ions होते हैं। Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth surface by this layer. तो radio waves transmitted from the earth they are reflected back by this. अब टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है विद हाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने जो पिछला लेयर पढ़ा था दैट वाज, जस्ट अ सेकंड, यस, सो ओके, कहाँ थे हम? से भूलवा दिया। ओके ओके, सो basically what I was showing you. Okay, so temperature here starts increasing with height, very important. The uppermost layer of the atmosphere above the thermosphere is known as exosphere. This is the highest layer, but very little is known about it. Why? Because it is like 400 किलोमीटर से परे है भाई ये, ठीक है। So whatever contents are there, they are extremely rarefied. Very nice word, rarefied in this layer, and it gradually merges with the outer space. Although all layers of the atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the first two layers of the atmosphere. Why? Because 99% of the mass of the atmosphere is there in the range of 32 kilometers from the Earth's surface. That's why they are concerned with these two layers, right? Elements of weather and climate. The main element of atmosphere which are subject to the change and which influence human life on earth are temperature, pressure, wind, humidity, clouds and precipitation. These elements have been dealt in the detail in chapter 9, 10, 11, 12. इसी बात पे let's do MCQ. चलो, we won't be doing the other answers. Let's 5 MCQ है, खत्म करते हैं इसको। Which of the following gases constitute major portion of the atmosphere? Major portion. ऑल्दो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बट द आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक है, नॉट ऑक्सीजन, नॉट कार्बन, नॉट आर्गन, आर्गन तो बहुत कम है, ठीक है। फिर हमारी ऑक्सीजन आती है। एटमोस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स इज ऑब्वियसली जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलेगा, बट वो किस, अच्छा हमने डिस्कस किया सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? तो सबसे पहले जो प्रेजेंट है उसमें ही सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। बट मेरे को एक डाउट है कि भाई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी वो वही तो होगी जो हमें हीट वेव से बचाएगी, तो वो तो स्ट्रेटोस्फेयर है, राइट? तो फिर हाउ ट्रोपोस्फेयर विल बी द आंसर? हीट वेव से भाई सनस्क्रीन लगा लेंगे बचने के लिए,
ओजोन वहाँ पे, ऑल्दो आई एम सेइंग वेरी इम्प्रैक्टिकल पॉइंट कि ओजोन नहीं होगा तो हम एक्सिस्ट नहीं करेंगे, बहुत सीवियर हीट्स आएंगी, यूवी अगर यूवी रेडिएशन अगर नहीं बची तो. बट इफ यू डोंट हैव एयर टू ब्रीथ, देन व्हाट यू विल डू ऑफ दैट स्कोचिंग यूवी रेडिएशंस. वो एयर तो यहाँ पे मिल रही है ना ट्रोपोस्फेयर में. दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. ओजोन लेयर है इसमें भाई, बट द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी लाइक, हमने सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस किया था इसमें कि हाँ, जैसे इसमें था ये, इसमें था या जूनियर क्लासेस में पढ़ा तो है कभी. हाँ, इसमें ये कि भाई हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम और क्या करते हैं, पानी पीते हैं, दैट इज़ ज़रूरी. बट हवा के बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते. तो वही बात हो गई यहाँ पे, दैट एयर इज़ वेरी एसेंशियल. ओके, नेक्स्ट, sea salt. These are associated with your dust particles. We started this. Then next we have the oxygen gas is in negligible quantity at the height of 120 around, हमने पढ़ा था. No, 120 was like is in negligible quantity. 120 था ना? I think so. I'm not good with numbers. So there will be almost in negligible quantity at the height of 120. Okay, 120. Fine. Now which one of the following gases is transparent? CO2. Transparent opaque, यही तो पढ़ा था हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में. And with this we are done with this chapter. Like, yeah. So this was a very short chapter. Although we invested like a 40 minutes on this, तो 2x पे करके देखना. One shot, when I'll provide one shot of these chapters, you'll get the better understanding. Thank you.